नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अनिल कुमार आपके लिए अपना फिजिक्स में हर बार फिजिक्स से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं। तो जैसे आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, आज हम इन्हीं सभी टॉपिकों पे वन बाय वन बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट मोशन। यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा पैदा होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं या गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में बात करते हैं, देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसी चीजों को हिंदी में सिखाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट मोशन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर, वेयर m is the mass of an object and v is the velocity. So let's derive the formula of kinetic energy. So we all know that work done is equal to the force into distance, where force is also defined as equal to mass into acceleration. And as per the definition or equation of motion, v square equal to u square plus 2s, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the distance of an object. So if an object is starting from rest position, then u will be equal to 0. So v square equal to 0 plus 2as is the second equation formula, and we got s equal to v square by 2a. s equal to what? s equal to v square upon 2a. yes. तो मेरे को s का फार्मूला मिल गया और फोर्स का फार्मूला मिल गया ma. तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस में ये दोनों वैल्यू पुट करता हूँ। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मीन्स ma इंटू v स्क्वायर अपॉन 2a. ओके, तो आपको इसके अकॉर्डिंग a से a कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला मेरा बन जाएगा w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. यस, वर्क इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एंड वी नो दैट द वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी. So the formula again becomes same, half mv square is the formula for kinetic energy. Next, what is the unit of kinetic energy? Kinetic energy is equal to the work done, so its unit is also known as joule. Or in SI system, it is kilogram meter square per second square. Another system, and that is called CGS, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, and 1 joule equal to 10 की पावर 7 अर्ग. This is the CGS unit of kinetic energy. Now if we move from some important point of kinetic energy, first point is it is a scalar quantity. There are two type of quantity, you know, scalar as well as vector. So vector quantity are those which have magnitude as well as direction, and scalar quantity are those which have only magnitude. So kinetic energy is a scalar quantity, so it has only magnitude. The velocity depends on the motion of an object, maybe it positive or maybe it zero. If an object is moving in a straight line, the energy is said to be positive, or if a body is at rest position, that means velocity will be zero, so energy is also is zero. So energy may be positive or may be zero, but kinetic energy never be negative. Then next we will talk about the law of conservation of energy. Energy neither be created nor destroyed but only transfer one form to another form. जी हाँ, एनर्जी को आप ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप बदल सकते हैं. तो किस रूप में बदला जा सकता है? कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड एज वेल एज साउंड एनर्जी. तो आप एनर्जी को तीन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं: स्थिर ऊर्जा, हीट या ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा. इसकी भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा. टाइप ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ मोशन. If an object is moving in a straight line, that is called translational energy, and if
object is moving in a rotational or circular path, that is called rotational energy. Or if an object is moving to and from their mean position, that is called vibrational energy. Apart from that, electrical energy is also one form of kinetic energy. You can convert kinetic energy into electrical energy. Best example, ठीक है ना, when a turbine rotates, energy is formed or generated with the help of some mechanical conversion. Electrical energy convert into mechanical energy. Mechanical energy also convert into electrical energy. तो यही सब बातें हमें मालूम है. अब इन्हीं सब बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले परिभाषा आती है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं. कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसी गति के कारण उत्पन्न होती है. जैसे एक चलती हुई कार में ऊर्जा किस फॉर्म में होगी, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में. या हमारे सर के ऊपर चलता पंखा भी एक गतिज ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है. गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v वस्तु की गति होती है. ये फार्मूला कैसे आया, तो ये फार्मूला हमारे कार्य के फार्मूले से निकल के आता है. क्योंकि हमें पता है जितने हम काम करते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी होती है. और कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को यदि मैं न्यूटन के सेकंड नियम के हिसाब से डेफिनेशन में परिभाषित करना चाहूँ तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और हिंदी में बोलो तो द्रव्यमान गुणा त्वरण. तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है. और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है गति के, जो दूसरी इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as होती है, वहीं से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो वो आती है v²/2a. इन दोनों को ही मैं प्रथम फार्मूले में पुट करता हूँ. फोर्स इनटू डिस्टेंस की जगह f की जगह मैं ma पुट करता हूँ और डिस्टेंस की जगह पुट करता हूँ v²/2a. तो a से a कैंसिल हो जाता है इस केस में. तो फार्मूला निकल के आता है हाफ mv². यह कार्य का फार्मूला है और यही हमारे गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला है. गतिज ऊर्जा का इकाई क्या है, तो इकाई जैसे कि आपको पता है गतिज ऊर्जा की इकाई जूल है. तो जब कोई वस्तु 1 न्यूटन के बल से 1 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं कि उसका यूनिट या इकाई जूल है, 1 जूल है. ऐसा ही सिस्टम में यूनिट जूल है, जिसको आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं. और यदि हम सीजे सिस्टम की बात करें तो वहां पे इसकी यूनिट अर्ग होती है, ERG अर्ग. 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है. काइनेटिक ऊर्जा को मैं हिंदी में थोड़ा सा और परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ तो इसकी कुछ मुख्य पॉइंट मेरे को समझ में आते हैं. जैसे ये एक अदिश राशि है. राशियां 2 प्रकार की होती है, जिनमें पता है सदिश राशि और अदिश राशि. सदिश राशि वह राशियां होती हैं जिसमें कि मात्रक भी होता है और जिसमें जिसकी दिशा है ना. अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती. तो जहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों आ जाए वो सदिश राशि है. जिसमें केवल परिमाण आए वो केवल अदिश राशि है. तो काइनेटिक एनर्जी एक अदिश राशि काउंट होती है ना. ये धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है. ये कार चल रही है या रुकी हुई है, उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो धनात्मक है या शून्य है. रुकी हुई कार में शून्य कहा जाएगा और चलती हुई कार में धनात्मक कहा जाएगा. तो ऊर्जा हमारे पास अदिश राशि की फॉर्म में होती है. ऊर्जा हमारे पास धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है. ये काइनेटिक ऊर्जा की कुछ विशेषता है. इसी के आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि ऊर्जा, क्योंकि हम काइनेटिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा का एक और नियम है जिसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम. ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बताता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं. जी हाँ, ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी एक चलती हुई कार को हम ब्रेक लगा के रोक सकते हैं. तो हमने क्या किया,
उसकी गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। ऊष्मीय ऊर्जा में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया, सबसे सिंपल, दोनों हाथों को लीजिए और उनको रगड़ना सीखिए। तो रगड़ रहे हैं यानी कि गतिज ऊर्जा है, और कुछ मिनटों में ही आपको अपने हाथ गर्म फील होने लगते हैं। तो यही गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का सबसे सरल उदाहरण है। ध्वनि ऊर्जा, आप गतिज ऊर्जा को ध्वनि में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, यदि मैं किसी ड्रम को बजा रहा हूँ तो क्या होता है, उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, और जो उस पर हम डंडी बजा रहे हैं वो क्या है, गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी विशेषता है कि हम एनर्जी को बदल सकते हैं, किस फॉर्म में बदल सकते हैं, क्या उसकी SI यूनिट होती है, क्या उसकी सीरियस यूनिट होती है, अभी हमने ये सब जाना। अब यदि गति के हिसाब से देखें तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है ना। तो यदि मैं उसकी गति का देखूं तो गति को मैं 3 भागों में विभाजित कर सकता हूँ। एक रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है। एक घूर्णन गति, जब वस्तु गोल गोल अपनी ही धुरी पे घूमती है, जैसे धरती घूम रही है हमारी, है ना। तीसरा कंपन ऊर्जा, यानी जब कोई वस्तु अपनी ही मध्यम अवस्था के आगे और पीछे गति करती है। तो ये मेरे पास गति के हिसाब से 3 तरह की आपकी गतिज ऊर्जा होगी, रेखीय गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और कंपन गतिज ऊर्जा। इसके अलावा भी एक और ऊर्जा है जिसमें आप बदल सकते हैं काइनेटिक ऊर्जा को, उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मेरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, वो जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो पंखा चल जाता है, स्विच ऑन करता हूँ तो ट्यूबलाइट जलती रहती है। ये कैसे होता है? क्योंकि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो मैं दिशा देता हूँ इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए, स्विच से ट्यूबलाइट या स्विच से पंखे पर जाने के लिए। तो यानी कि आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इन तारों के द्वारा, सर्किट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ताकि में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा बदल रही है विद्युत ऊर्जा। तो जी हाँ, काइनेटिक ऊर्जा को हम बदल सकते हैं। काइनेटिक ऊर्जा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका आप फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला ड्राइव होके कैसे आएगा इसका? तो जैसे मैंने बताया था, इसमें न्यूटन का सेकंड नियम लगेगा और गति की द्वितीय समीकरण का भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या बताया मैंने आपको? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। बल का जो आपका फार्मूला है, बल को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आपको पता है बल बराबर किसके होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, m गुणा a। तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया मेरे पास? m गुणा a। अब बात करते हैं s की, यानी कि दूरी की, विस्थापन की। तो दूरी बराबर को कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे दूसरी समीकरण से, v स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस as। यहाँ पे v क्या है? v है अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, और s क्या है? s है हमारे पास यहाँ पे विस्थापन यानी कि दूरी। ठीक है। तो जब वस्तु कोई रुकी हुई होती है और चलना शुरू करती है, तो यानी कि प्रारंभिक अवस्था उसकी 0 है, तो u को मैं इस फार्मूले में 0 कर देता हूँ, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला बन जाता है। अब यहीं से मेरे को s की वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s आ जाएगा। तो s का फार्मूला आ गया v स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये दोनों फार्मूले उठा के मैं वर्क वाले यानी कार्य वाले फार्मूले में रखता हूँ। तो w बराबर ma फार्मूला है मेरे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पे मैं f की जगह ma पुट कर देता हूँ, s की जगह पर v स्क्वायर अपॉन 2a पुट कर सकता हूँ। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूले को विस्थापित किया किसके द्वारा? न्यूटन के सेकंड नियम के द्वारा और गति की द्वितीय समीकरण के द्वारा। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था, जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी, और आज हम इसी की आपसे बात कर रहे थे। धन्यवाद।